I'm just trying, okay? Trying. Visible है? Is it visible? Yes, sir. Yes, Okay, sir. ठीक Yes, है. sir. So let's start. सो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको अपने लैब के अंदर सपोज करिए कि सारे सिस्टम जितने भी टर्मिनल्स हैं जो कि नेटवर्क पे हैं, आप लैन बिछा चुके हैं, एंड इफ यू वांट टू कंट्रोल ऑल द टर्मिनल्स थ्रू द सर्वर, then one server, the system which is server, should be built as DNS, because every client has to follow it. So what happens in this case, from that server we have to create some uh, IP addresses for the rest of the systems which are on local area network. So the main system which is controlling all the systems, all the clients, is known as the server, and through that server you'll be able to control all those systems if you want. मीन्स अगर आप सर्वर पर बैठे हैं तो आप किसी भी सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, और सिस्टम को कंट्रोल करने का मतलब ये भी है कि इफ यू वांट टू शट इट डाउन, शट एनी सिस्टम डाउन, पूरे नेटवर्क में अगर किसी भी सिस्टम को डाउन करना चाहते हैं, शट डाउन करना चाहते हैं, तो you have the capacity to shut down the particular system through the server. So all those systems which are connected to the server are the clients, and they can make the request to the server, and server will entertain the request and will give the response appropriately. Okay, so here domain name system is hierarchical and decentralized naming system for the computers. Services means terminal services, I mean computer services, and other resources connected to the internet. Domain name system delegates the responsibility of assigning domain names and mapping those names to internet resources by designating authoritative name servers for each domain. What happens, suppose करिए कि your email, your school ID is, say, admission number, the name at armypublicschoolagra.com. So armypublicschoolagra.com is the domain, and it means the server is created for Army Public School Agra, so that every child, every teacher can have the can share the resource of Google, and in addition with you. So domain name makes it easy to change names in IP addresses. Domain name is used to identify a web server in a URL. URL means अभी हम next में पढ़ते हैं URL. What is URL? A domain name is an address of a web server. Definitely, if you have any site like armypublicschoolagra.com, तो इसका कोई ना कोई पर्टिकुलर जो है आईपी एड्रेस भी होगा, एंड उस आईपी एड्रेस के इक्विवेलेंट आपका ये वेबसाइट नेम भी है और यूआरएल भी है. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमने लिया है कि http://cbse.nic.in/index.html. So over here index.html is the file or the page, and this file is placed at the server cbse.nic.in server, which is basically the domain name. यानी cbse.nic.in पर there are many files and many web pages stored in this server, and whichever page you require, you will just say कि cbse.nic.in slash the page name or the file name. That particular file or page is National Information Center. This is the acronym of नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम. पूरे इंडिया का
जो मेन सर्वर है वो यहीं से NIC से ही सर्व किया जाता है. So NIC is subdomain in above example and CBSE is also a subdomain. So basically जो NIC है, NIC के बाद अगर कई सारी कंपनी जैसे NIC से CBSE जुड़ी हुई है, NIC से यूपी स्टेट जुड़ी हुई है, NIC से अपना एविस जुड़ा हुआ है, तो ये सारे के सारे NIC सर्वर से लिंक्ड हैं. तो NIC इज द मेन सर्वर एंड ये इसके सब सर्वर्स कहलाएंगे, जिसमें कि हमारा एविस भी हो सकता है और हमारा जो CBSE है वो भी हो सकता है. तो ये सब सर्वर्स हैं या सब डोमेन नेम्स हैं. एग्जाम्पल ऑफ डोमेन नेम्स आर .com फॉर कमर्शियल, .edu for educational, .gov means government, .mil this is military domain, .net this is network domain, and .org is the organizational domain. And domain name can be based on the country also. जैसे कि .in इंडिया के लिए, .au ऑस्ट्रेलिया के लिए है, .nz न्यूजीलैंड के लिए है, and .jp I don't know, .us is Australia. Okay, so JP Japan. जी Japan. JP is Japan. Japan, right? You're right. So I was missing this. What is .jp? This is Japan. Correct. So यहाँ पर हमें कुछ कमांड्स भी करने को मिलेंगे. आज हम उन कमांड्स के बारे में भी जानेंगे. Now we are focusing on Uniform Resource Locator. Basically, this is the website name, and the website name, or you can say the URL. This is basically used to identify a website or the web page. HTTP locators are used to access distributed documents world over. Means HTTP, any hypertext transfer protocol, this is basically responsible for the websites which are being navigated throughout the world. URL is used to specify any information on internet. यानी कि कोई भी साइट होगा तो उसको हम उस साइट को URL ही बोलते हैं, और इसका जो पैरेलल नेम होगा वो होगा IP एड्रेस. यानी किसी भी वेबसाइट का या तो URL नेम होगा या फिर उसका पैरेलल IP एड्रेस भी होगा. तो या तो आप वेबसाइट डायरेक्ट दीजिए या फिर URL से भी काम चला सकते हैं. सपोज करिए कि जैसे यहाँ पर लिखा है verisign.com, तो verisign.com का एक पर्टिकुलर IP एड्रेस होगा जो जिस सर्वर पे verisign.com रजिस्टर किया गया है वहां से एक IP एड्रेस इशू होगा verisign.com के लिए. तो verisign.com यूज करें या फिर आप यूज करें वो IP एड्रेस, तो डेफिनेटली योर साइट will be you'll be using that site using that IP address. So URL structure has 4 factors. Number 1, प्रोटोकॉल लाइक HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं? FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी अगर आपको अपने सिस्टम से फाइल्स को अपने वेबसाइट पे अपलोड करनी है या वहां से डाउनलोड करनी है तो वील यूज FTP ऐप फॉर uploading and downloading the sites or pages. HTTPS again hypertext transfer protocol as for secure. HTTP is not secured, but HTTPS is secured. So today it is expected that every site should be secured site. Though your school site is, I think, not secured site, because when you navigate this site, you will have to write HTTP / army public www.armypublicschoolagra.com. But if this was the secured site, then its HTTP should be converted to HTTPS. और बहुत सारे जो लोग साइट डेवलपर्स हैं वो लोग साइट को डेवलप करने यानी सिक्योर करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स यूज करते हैं, जैसे कि cloudflare.com जो एक साइट है. what happens in this case, Cloudflare does that it takes your domain name सर्वर्स, आपके DNS सर्वर्स लेगा और उसको थोड़ा चेंज करेगा.
चेंज करने के बाद उस साइट को वो सिक्योर कर देगा, देन HTTP से ये ऑटोमेटिकली HTTPS हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब भी आप कोई साइट डेवलप करते हैं तो DNS जो मिलता है, जो रजिस्टर कराते हैं, वो HTTP पे मिलता है। तो HTTPS करने के लिए आपको कई सारी ऐसे सर्विसेज हैं जो कि आपको सिक्योर करती हैं। तो ऐसी साइट्स को सिक्योर करने के लिए, HTTPS लेने के लिए आपको उस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, और जो आपकी साइट के DNSs हैं, जो 2 DNSs आपको मिलेंगे, वो वहां मेंशन करने पड़ेंगे। देन वो साइट जो कि सिक्योर साइट बना रहा है, वो फिर आपको 2 DNSs और प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आप जो आपके DNS हैं उसके इक्विवेलेंट एंड पैरेलल DNS तैयार हो जाए, सो दैट आपकी साइट सिक्योर हो जाए। ओके, सो हियर host computer, as we have discussed, cbse.nic.in, this is the server or domain. Port, it is optional, बिकॉज एक नंबर होता है जो कि बताता है कि कहाँ से, या आप कह सकते हैं फोल्डर बोल सकते हैं कि इस फोल्डर से ये साइट उठानी है। लाइक ए पोर्ट हैज ए नंबर 808080 मीन्स 8080 का मतलब है ये होस्ट नंबर है, पोर्ट नंबर है, जहां से कि आपकी साइट का जो रास्ता है वो अवेलेबल होगा। सो बेसिकली 8080 इंटरनेट के लिए यूज होता है। और इससे पहले जब जेंगो हम लास्ट ईयर जो कर रहे थे, उस टाइम पर भी हमें 8000 या 8080 ये हमें पोर्ट यूज करना पड़ रहा था आपकी वेबसाइट, यानी हमारे अपने प्रोग्राम्स की वेबसाइट डेवलप करने के लिए। सो बेसिकली देखा जाए तो जो साइट है, साइट कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगर होती है जो कि आपको नीचे दिखाई दे रही है। What is path? Path, it is the name of the path or place where file is stored. So इसमें तो आपको कोई ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बट आपको जो समझना है वो यहाँ समझिए। HTTP slash colon slash slash www, this is the URL, javapassion.com :80 java intro index.html में आपको लेना है networking page. So in this folder, you want to access networking dash networking underscore API. This is the page name. You want to access this page from this folder, and this is on this subdomain, and this is the port, and this is the server. So over here, HTTP is a protocol, any hypertext transfer protocol, and this is your host name. Java Passion is the host name. This is the port number, and this is path and file. So this is a path and this is a page you want to use. So this is a page, or you can say the reference page, right? So this is the complete URL of the website, or equivalent to the IP addresses. So यहाँ पर कुछ नेटवर्किंग टूल्स हैं जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर करके भी बताता जाऊंगा। और अगर आप कंप्यूटर बैठे हुए हैं तो कंप्यूटर बैठे बैठे भी आप इस चीज को देख सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर जनरली नेटवर्क टूल्स और कमांड्स आर यूज फॉर नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, टू आइडेंटिफाई नेटवर्क स्टेटस, or to identify the user. We'll discuss some tools here, and the commands are, the first command is trace route, यानी रूट को ट्रेस करना, यानी रास्ते को ट्रेस करना कि किस तरीके से आपका नेटवर्क राउटिंग हो रहा है। सो इट इज ए नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिफरेंट कमांड नेम्स आर देयर फॉलोड बाय द डोमेन नेम, यानी उसके बाद डोमेन का नाम दिया जाएगा। जैसे कि दिस इज द रूट, ट्रेस राउट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रेस आरटी, ट्रेसर्ड आप कह सकते हैं, ट्रेसर्ड एंड देन द डोमेन नेम armypublicschoolagra.com. This is a domain, and trace route armypublicschoolagra.com. So it will show you the complete statistics about armypublicschoolagra.com. जैसे ही आप अपने सिस्टम पर ये कमांड टाइप करेंगे, ट्रेसर्ड
and domain name, and it will give you the IP address or the server IP address 98. Yani in place of armypublicschoolaga.com, you can, if you mention 98.137.244.37, armypublicschoolaga.com site will be opened. एंड द मेन होस्ट कौन सा है, बिकॉज ये साइट जो है याहू से लिया गया है, मेन सर्वर याहू है, तो यहाँ पर याहू भी मेंशन हुआ है, यानी पूरी साइट आपके याहू सर्वर पर बनी हुई है। तो ट्रेसर्ड एंड आपकी वेबसाइट का नाम, तो ये कंप्लीट जो एनालिसिस है वो करके आपको बता देगा कि किस तरीके से नेविगेट हो रहा है, क्या रिसोर्स है इसका, एवरीथिंग इट विल शो यू। So this is Trezor. Next is ping. Ping is also a command, a networking command. It is a network diagnostic tool carrying IP address or domain name. It tells that we are connected to the server or not. सपोज करिए कि आप armypublicscholar.com ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ओपन नहीं होती है, तो उस केस में आपके पास जो टूल होगा उससे आप पता कर सकते हैं कि कहीं ये साइट डाउन तो नहीं है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, पिंग एंड armypublicscholar.com, तो ये आपको बता देगा कि सर्वर डाउन तो नहीं है। अगर डाउन नहीं होगा तो डेफिनेटली वहां से रिप्लाई आ जाएगा, अदरवाइज आउट ऑफ टाइम का मैसेज आ जाएगा। सो हियर दिस इज गिविंग, आई जस्ट गेव पिंग facebook.com। तो ये इसने क्या किया है, इस पिंग जो है फेसबुक को कनेक्ट हो रहा है, इस सर्वर को कनेक्ट हो रहा है, और यहां से आपको रिप्लाई मिल रहा है। जैसे जैसे आप उसको पिंग करते जाएंगे, मतलब पिंग करने का मतलब है एक तरह से रिंगटोन देना कि आपकी ये साइट आपको अवेलेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सो इफ इट गिव्स रिप्लाई देन इट मींस you'll be able to navigate this site. Next command, ipconfig. This is very important command as far as networking tools are concerned. It is a network troubleshooting tool, ipconfig. With the help of this, we get basic information about network like MAC address, IP address and subnet mask. देखिए यहाँ पर अगर आप प्रॉम्प्ट पर जाकर के सिंपली लिख देते हैं ipconfig, ये कमांड आप लिख देते हैं, एंटर दबाते हैं, तो आपके सामने ये सारी चीजें आएगी कि विंडोज IP कॉन्फ़िगरेशन। ipconfig का मतलब IP कॉन्फ़िगरेशन, एंड इट विल शो यू एवरीथिंग हियर। यहाँ पर क्या मीडिया है, क्या इस सिस्टम का IP एड्रेस आ रहा है, और किस वर्जन का IP एड्रेस, दिस इज IP वर्जन 4, एंड दिस इज सबनेट मास्क 255, बिकॉज जो हाईएस्ट IP एड्रेस होगा वर्जन 4 का, वो होगा 255.255.255.255, लेकिन ये ब्रॉडकास्टिंग IP एड्रेस होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। सो 255.255.255.0 तक आपके लिए एप्लीकेबल है, जीरो भी चलेगा, जीरो से लेकर 254 तक आप इसको दे सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सबनेट मास्क है, ऐसा भी हो सकता है 255.255.0.0 या 255.255.1.0। इस तरीके से आप अपने सबनेट मास्क या IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। And one more thing, I want to add one thing more here, that if you want to ping your system, हालांकि आप इंटरनेट पर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने सिस्टम को पिंग करना चाहते हैं, तो यू कैन गिव द कमांड लाइक पिंग स्पेस 127.0.0.1। इसका मतलब यह है कि दिस इज योर लोकल होस्ट, so you can use it। and ipconfig के साथ साथ if you use ipconfig/all, this will give you more information। and after this we are using nslookup। this is also a command, external command। it means name server
looks up and it is used to get information about the internet server। जैसे कि मैंने यहाँ पर ns lookup किया है अपनी साइट के लिए, तो जो भी सर्वर है जिसको उस टाइम पर वो एक्सेस कर सकता है वो तुरंत के तुरंत आपको नाम देगा, अदरवाइज वो बाद में, बिकॉज इसका जो सर्वर है वो याहू है, हमारी साइट का जो सर्वर है वो याहू है, लेकिन यहाँ पर ये अननोन दे रहा है बिकॉज मैंने उस टाइम तुरंत कॉपी कर लिया था, तो ये उस टाइम सर्वर आ नहीं पाया था, तो अननोन मैंने कॉपी कर लिया था। और उसके साथ ही साथ आपको यहां पर ये बता दूं कि दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ योर साइट, सो ईदर यू यूज द कंप्लीट यूआरएल और यू कैन यूज दिस, द साइट विल बी ओपन्ड। अगेन another command net state, यानी नेटवर्क स्टेटस क्या है। इट इज यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स। तो जैसे ही आप इस कमांड को जाने तो जो भी स्टैट है, तो आपकी स्टैटिस्टिक्स पूरी आ जाएगी आपके नेटवर्क के बारे में, जो आप जिससे भी आप कनेक्टेड हैं, जो भी साइट आप नेविगेट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो द कमांड। इसके अलावा और भी कमांड है, जैसे लाइक एक कमांड है हु इज के लिए आपको एक ऐप जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी इंटरनेट से। तो ये भी आपको बताएगा कि आप किस सर्वर से कनेक्टेड हैं और आप क्या हैं, यानी आपके सिस्टम का नाम क्या है, या जिस सिस्टम से आप कनेक्टेड हैं उसका नाम क्या है। तो हु इज द ऐप ऑन इंटरनेट, यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन यूज इट। हु इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो है मुझे तो काफी यूज करनी पड़ती है और हो सकता है आपको भी यूज करनी पड़े। दिस इज फॉर स्पीच टेस्ट। फॉर स्पीड टेस्ट ओकला करके जो साइट है उस पर आप जाइए स्पीड टेस्ट के लिए। दिस विल गिव यू द स्पीड स्टेटस ऑफ वाईफाई। So we can use various web services to get information about network speed like Ookla. This is the external app. Ookla जो है ये जो आपकी ऐप है, इस ऐप पे जाकर के आप अपने वाईफाई का जो स्टेटस है वो जान सकते हैं कि कितनी अपलोडिंग हो रही है, यानी अपलोडिंग स्ट्रेंथ क्या है एंड डाउनलोडिंग स्ट्रेंथ क्या है। डाउनलोडिंग स्ट्रेंथ जो है वो नॉर्मली ज़्यादा होती है अपलोडिंग की अपेक्षा। प्रोटोकॉल, जो कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं, प्रोटोकॉल क्या है। तो यहाँ प्रोटोकॉल के बारे में बता देता हूँ कि इन ए नेटवर्क देयर इज अ ग्रुप ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा डेवलप्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन IEEE, यानी ये इन नेटवर्किंग का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। एंड फुल फॉर्म क्या है वो आप बुक में देख लीजिएगा या इंटरनेट पे देख लीजिएगा। तो इंटरनेशनली जो है ये अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स हैं फॉर प्रोटोकॉल्स नेटवर्किंग के। दीज रूल्स आर टर्म्ड एज प्रोटोकॉल्स। Protocols are the set of rules to transmit the data over the network। यानी जब आप OSI की बात करते हैं तो यहाँ पर IEEE डेफिनेटली आ जाएगा, बिकॉज सारे स्टैंडर्ड IEEE ने बनाए हुए हैं। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। एज वेन वी टॉक वॉक, ये एग्जाम्पल है, जैसे कि हम सड़क पर जा रहे हैं तो हमें कुछ ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने होते हैं, और अगर हम उन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हम प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज ये आपके रोड प्रोटोकॉल्स हैं, और कि आपको लेफ्ट पर चलना है और आपको सामने देखना है, और जब क्रॉस करते हैं जेब्रा लाइन यूज़ करनी है, आपको चौराहे पे पहुंचना है तो रेड लाइट ऑब्जर्व करनी है, ग्रीन लाइट है या नहीं है, इस फिर आप रोड क्रॉस करेंगे। बहुत सारे रूल्स जो वहाँ पर आते हैं, तो दीज आर द प्रोटोकॉल्स। सिमिलरली यहाँ पर भी नेटवर्क पे भी प्रोटोकॉल्स यानी रूल्स आते हैं। सम ऑफ द प्रोटोकॉल्स आर TCP/IP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट दिस इज अगेन ए प्रोटोकॉल। लाइक अभी आप नॉर्मली एनी डेस्क में आप कई लोगों से बोलता हूँ कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या आपका जैसे प्रोजेक्ट का जो हम काम कर रहे हैं तो उस टाइम पर एनी डेस्क वगैरह हमने यूज़ किया है, दिस फॉलोज द टेलनेट प्रोटोकॉल, यानी टेली लॉगिन,
यानी दूर जो रिमोट सिस्टम है उसको लॉगिन करने के लिए जो ऐप यूज होती है वो टेलनेट होती है। आप डायरेक्ट भी इस कमांड को यूज कर सकते हैं। पीओपी, दिस इज द प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल्स हमारे इंटरनेट पे काम करते हैं। और दूसरी चीज, दिस इज ओएसआई मॉडल, जिसमें कि 7 लेयर्स होती हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। दिस इज कॉल्ड ओएसआई मॉडल। सो ईमेल के बारे में आप सब जानते हैं, तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ भी देख लेते हैं। Most common service of internet is email, used to send messages from sender to receiver. और ईमेल एड्रेस किस तरह से बनता है तो वो आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर this is the client xyz@gmail.com, where xyz the unique ID of the person or the receiver or the user on gmail.com as its server provider for email is Gmail, यानी Google Mail. A service provider has a mail server to keep all the mail safe. A user can access its mail after login to his account, his or her account. It is also based on client server architecture. Client server architecture का मतलब है कि you are the client and the Google is the server. So client server architecture apply होता है and two protocols work together here. One is SMTP and other is POP during receiving or sending the mails. Email sending has the following composition. Number one, composition, get ready the mail. Number one, transfer, sending on mail from computer to server. Reporting, informing the sender about the status of the mail, whether it is delivered or not. इसके अलावा displaying reading of mail by user and deposition. Disposition का मतलब है act is decided by the user after reading the mail, यानी जो discretion है वो depend करता है user पर after reading the mail whether to reply or not. So here this is HTTP hypertext protocol. Hypertext transfer protocol is a protocol used to access data on internet or on world wide web. It is a mixture of FTP and SMTP, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी यहाँ पर यूज होता है, बिकॉज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है फाइल्स को नेट पे डालने के लिए और वहां से डाउनलोड करने के लिए। एंड इन द सेम वे SMTP भी यूज होता है मेल को डालने मेल को रिसीव करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए। इट इज अगेन बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। हियर क्लाइंट सेंड्स ए रिक्वेस्ट टू द सर्वर and server responds to this request and HTTP sends the code of web page for this. So what happens in this case, ये देखिए यहाँ पर अगर इसने कोई भी रिक्वेस्ट भेजा है तो HTTP के थ्रू ये जाएगा आपके सर्वर पर और सर्वर उसको एंटरटेन करेगा एंड रेस्पॉन्ड बैक करेगा। तो इसको जो रिक्वेस्ट इसने भेजा है उसका आपको जवाब मिल जाएगा। So this way HTTP works. HTTPS, hypertext transfer protocol, and this is secured. Secure is safe protocol to send data on internet or on world wide web. It is a version of HTTP. Definitely, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बहुत सारी साइट्स हैं जो कि आपके HTTP यानी hypertext transfer protocol की जो साइट्स हैं उनको सिक्योर करता है। तो इसमें Cloudflare is one of them, ये भी आपकी साइट को सिक्योर करती है। It is used at a places of high security, मतलब बैंकिंग वगैरह की जितनी भी साइट्स हैं, जितनी भी बैंकिंग की साइट्स हैं और जहां पर आप ये सोचते हैं कि ये साइट्स सिक्योर होनी चाहिए, तो उस केस में आप ये देखेंगे जो उनका जो URL है वो HTTPS से स्टार्ट होगा। यानी ये यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है कि अगर आप HTTP यूज कर रहे हैं तो जो भी मेल है आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब सिक्योर हो जाएगा तो वो इनक्रिप्ट होकर के आपके पास आएगी और इनक्रिप्शन का राइट, डिक्रिप्ट करने का राइट आपके पास होगा।
जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। इनक्रिप्टेड हो सकती है लेकिन ये जरूरी नहीं है आप उसको डिक्रिप्ट कर पाएं, और डिक्रिप्ट करने के लिए जब सिस्टम इसको ओपन करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ स्पैम हो सकता है स्पाई बोट हो सकता है ट्रोजन हॉर्स हो। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, इस वजह से आपकी साइट को सेफ रखना ये आपका काम है। तो किस तरीके से सेव करेंगे, इसके लिए बहुत सारी साइट्स हैं जो कि आपके HTTP को HTTPS में कन्वर्ट करती हैं। उसमें होता क्या है, DNS को वो चेंज कर देते हैं तो वो सिक्योर्ड हो जाती है। सम नेटवर्क एप्लीकेशंस लाइक, ये आपको पता होनी चाहिए, लाइक रिमोट डेस्कटॉप एक्सेसिंग ए कंप्यूटर फ्रॉम फार प्लेस, यानी जैसे एनी डेस्क है या टीम व्यूअर है या सिक्योर डॉट लॉग मी इन है, इससे आप रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। रिमोट लॉगिन एक्सेसिंग ए रिमोट कंप्यूटर यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। ऑब्वियसली जब भी आप एनी डेस्क यूज करते हैं तो एक मुझसे आप कनेक्ट हो रहे हैं तो ईमेल आईडी के थ्रू एंड एक कोड जनरेट होता है, उस कोड के थ्रू आप टीम व्यूअर पर या एनी डेस्क पर कनेक्ट हो सकते हैं। Telnet basically is a remote login. Windows. This is Windows application. Telnet is used for remote login where many users can connect to a server. FTP is again a protocol to send file from one computer to another via network. क्योंकि अगर आपने वेबसाइट भी डेवलप करनी है तो वेबसाइट पे पेजेस अपलोड करने के लिए आपको FTP यूज करनी पड़ेगी, या FTP हो या क्यूट FTP भी एक ऐप होती है, उससे भी आप कर सकते हैं। यानी फाइल को आपने अपलोड या डाउनलोड करना है तो SMTP, इट इज ए प्रोटोकॉल यूज फॉर ईमेल, स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। VoIP, इट मींस वॉइस ओवर इंटरनेट, यूज टू कैरी वॉइस ओवर इंटरनेट। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ये हनी ने बोला था कि सर वाईफाई के लिए अपने G Suite से वाईफाई इनेबल कर दिया सो दैट हम वाईफाई के थ्रू अपनी कॉल कर पाए, तो वो दिस इज काइंड ऑफ वाइप, वॉइस ओवर इंटरनेट। पॉप अगेन इट्स अ प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल फ्रॉम द सर्वर इन डिफरेंट आईडीज पर या डिफरेंट एड्रेसेस पर जो मेल जाती है वो इसी पीओपी का काम है। एक्सक्यूज मी। सम प्रोटोकॉल्स, ये आप प्रोटोकॉल्स देख लीजिए, कुछ ये शॉर्ट नेम्स हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं। एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP या ARP, DHCP। तो ये जो भी, जैसे TCP/IP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। ARP क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस से मतलब सिंपल सा है कि आप IP एड्रेस को वहां पर रिजॉल्व कर रहे हैं। DHCP का मतलब है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जहां पर सिस्टम